what is the opposition raising in parliament? They are asking the government to at least initiate a debate and discussion on SIR or electoral reforms. Do you think it's drama? If the Prime Minister or the BJP leadership or the one sitting at the helm of affairs in the government thinks that by raising the right questions for the people or people raising people's voices is drama, then let people of the country see and answer them in the next election. You have 40 people who have lost their life because of the way the SIR was hastily implemented without consulting with any of the stakeholders in the state government. The BLOs who were appointed by this very election commission has put the onus on EC and made them responsible for their deaths. Do you think it's drama? Do you think it's drama? Ask the question to the BJP leadership. Let the Prime Minister of the country, let the BJP top brass, let the Parliamentary Affairs Minister, let the Law Minister, let the Chief Election Commissioner answer this question. 40 people have lost their life. Where is the accountability of the government? People have no problem in standing in queue and filling forms, but where is the accountability? People filled forms before. People stood in the queue 10 years back when demonetization was announced, hoping that black money will be eradicated from the country. 10 years later, the volume of black money has further increased. Isn't the government accountable? Where is the accountability? Terrorists are coming from borders which are supposed to be protected by the union government. Where is the accountability? Blasts are happening in the national capital. Where is the accountability? 40 people have died because of unplanned SIR. Where is the accountability? They want to enjoy accountability without answering to the people. It's a deadly lethal combination. Opposition's duty and responsibility is to ensure that the government of the day operates and works remaining within the ambit of law and the legal framework. Government is not doing that. And if they think just by winning a couple of state elections, we are not answerable to the people, if people have the right and people have the might to reinstate you in a state or to give you an opportunity to serve the people of the state, they also have the might and mandate to remove you from the very state they have given you the responsibility to work for. Keep that in mind. So with all humility and grace, we have no problem. We want the parliament to function. But let me make it very clear, why is the government on the back foot even after winning elections and doesn't want to discuss on SIR or electoral reforms? What is stopping them? What is stopping the government? अगर 40 लोग की मौत हुआ है, इसमें अगर चर्चा चाह रहा है ऑपोजिशन पार्टीज, आपको लगता है ये ड्रामा है? पहलगाम पे अगर चर्चा चाह रहा है, ये ड्रामा है? दिल्ली ब्लास्ट पे अगर कोई चर्चा चाह रहा है, ये ड्रामा है? बंगाल के जितने भी फंड्स आप रोक के रखे हो, मनरेगा से लेके जल जीवन मिशन, आवास, रास्ता, 2 लाख करोड़ का ड्यू है गवर्नमेंट का. 2 लाख करोड़, 1,94,000 करोड़. ये फिगर नोट कर लीजिए. ये ड्रामा है? ये हक का पैसा है? किसी का मामा का पैसा है क्या? तो लोग डिस्कशन नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? मैं इस मिट्टी से चुना हुआ एक सांसद हूं. मेरा जिम्मेदारी नहीं है मेरा लोगों को जवाब देने का कि 5 साल में मैंने क्या किया, मैंने क्या उठाया? अगर 40 लोग मारे गए हैं बीजेपी के कारण, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कारण, इलेक्शन कमिश्नर के कारण, तो जवाब नहीं देगा पार्लियामेंट को? हम लोग पहले से कह रहे थे कि 2 महीना में SIR नहीं हो सकता. कल आपने देखा होगा फिर से 7 दिन बढ़ा दिया गया. भाई ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जो तृणमूल कह रहा था या ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे वही आप कर रहे हो. भाई किस चीज का ईगो? आप 6 महीना लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप 1 साल लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है. हम SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन don't twist and tweak my statement. The way SIR is being implemented, we are against that method and mechanism. कि BLOs को आप लगा रहे हो, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है. BLO का जो ऐप है वहां पे डिजिटाइज वोटर लिस्ट नहीं है. BLO को बोल दे रहे हो भाई आज के अंदर सब डिजिटाइज करना पड़ेगा. आपके तरफ से ना कोई ट्रेनिंग दिया गया है. ऐप में जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया है. BLOs को पहले से ब्रीफ नहीं किया गया है. और 2002 के जो डिजिटाइज लिस्ट है वो भी कहीं जगह पे अवेलेबल नहीं है.
तो ये किसका फेलियर है? ये तो स्टेट का फेलियर नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। तो इस पे अगर कोई चर्चा चाहता है तो वो ड्रामा है। मैं अगर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अंडरटेकिंग दे दे 140 करोड़ लोगों को कि एसआईआर होगा, इसके बाद कोई भी फर्जी वोटर अगर होगा तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल रिजाइन, लेट देम गिव एन अकाउंट, एन अंडरटेकिंग, अकाउंटेबिलिटी रहे। हम नहीं मांगेंगे एसआईआर पे डिस्कशन, हो गया भाई। अकाउंटेबिलिटी तो देना पड़ेगा। आपने यही कहा ना कि 10 दिन में 50 दिन में, प्रधानमंत्री ने यही कहा था जब नोटबंदी अनाउंस हुआ, तब तो यही कहा था कि 50 दिन मुझे समय दीजिए, अगर काला धन मैं हटा नहीं पाया तो देश के जिस चौराहे में मुझे ले जाके आप जो सजा देना चाहे वो दे देना। आज कितना दिन हो गया? वो 50 दिन मांगे थे, आज 3650 दिन हो गया। काला धन खत्म हुआ? 3650 दिन। और यही सरकार है जो जवाब देना नहीं चाहते। भाई जवाब तो देना पड़ेगा। आप एसआईआर कर रहे हो, पहले आप बताओ ये घुसपैठिया आए कैसे, जिम्मेदारी किसका है? सवाल जवाब नहीं देगा सरकार। भाई एसआईआर का जरूरत क्या पड़ा? आप कह रहे हो वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन है, वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटी है, तो वोटर लिस्ट में इंटेंसिव रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं। फेयर इनफ, और होना भी चाहिए। मतलब और इसी वोटर लिस्ट के आधार पे जो सरकार 1 साल पहले चुन के आया वो लीगल है। मतलब आप लीगल हो, वोटर्स इलीगल है। आपने मोदी जी को देखा, अमित शाह को देखा 4000 रुपया, या बीजेपी का कोई मिनिस्टर को देखा नोटबंदी के टाइम पे लाइन लगा के 4000 रुपया चेंज करने के लिए? गरीब लोग किए। 140 लोग मारे गए, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हीट स्ट्रोक। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप नहीं हो, जवाब आप नहीं दोगे। आप इलेक्टोरल रोल चेंज कर रहे हो, कह रहे हो इलेक्टोरल रोल में इरेगुलरिटी है। भाई इसी इलेक्टोरल रोल पे मैं एमपी बना हूं और जो गवर्नमेंट में है वो भी एमपी बना है। अगर मैं इस इलेक्टोरल रोल के आधार पे चुना गया हूं, जो देश का गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है या डिफेंस मिनिस्टर है या जो भी मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर, वो भी इसी आधार पे चुने गए हैं। आप कह रहे हो वोटर गलत है, हम सही है। भाई जो आपको चुने वो अगर इलीगल हुआ तो आप भी तो इलीगल हुए। आप इलीगल वोटर लिस्ट के ऊपर तो चुन के आए हो, आप ही के भाषा में। तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड टेक द मॉरल हाई ग्राउंड एंड रिजाइन, डिसॉल्व द लोकसभा। फिर आप एसआईआर करिए कश्मीर से पूरा कन्याकुमारी, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पावर में रहोगे, आपको जो सूट करता है वो आप करोगे और जनता को हिसाब नहीं दोगे। भाई हिसाब तो देना पड़ेगा। बंगाल का आप 2 लाख करोड़ रुपया रोक के रखे हो, ये पैसा किसका है? किसका है? किसी का चाचा का है, ताऊ का है, मामा का है, किसका है? ये जनता का पैसा है। तो अब जनता को दोगे नहीं। बंगाल के ऊपर जो आपका अटैक हुआ है, बंगालीज को सिलेक्टिवली आप चुन के जैसे प्रोसिक्यूट किए हो, बंगालीज को बांग्लादेशी बोल के आप बांग्लादेश भेज दिए हो। इवन आफ्टर हाई कोर्ट्स ऑर्डर यू हैव नॉट ब्रॉट देम बैक। हाई कोर्ट ने बोला है मनरेगा का काम चालू करो, ये केंद्र की सरकार अभी तक चालू नहीं किया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट कर रहा है। और हम लोग डिस्कशन चाहते हैं तो बोलते हो ड्रामा है। भाई ड्रामा कौन कर रहा है? देश का जनता देख रहा है। जिसके पास जवाब नहीं है वो डिस्कशन अवॉइड कर रहा है। आप एसआईआर पे चर्चा कीजिए। बंगाल पे जितना भी डेप्रिवेशन हुआ है, 2 लाख करोड़ का ड्यू आप रोक के रखे हो, आप चर्चा करो। भाई आप जीत रहे हो तो आपको तो जनता में फेस करने का कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अभी भाई एक डेटा आया 2 दिन पहले कि जीडीपी फिर से बढ़ गया और इस क्वार्टरली रिजल्ट में जीडीपी और अच्छा हो गया, 8 पॉइंट समथिंग हो गया है। भाई 4 आदमी से जाके पूछिए 10 साल में इनका जीवन में किसी का भी, आप जो बैठे हुए हैं 10 साल छोड़ दो, लास्ट 1 साल में ऐसा क्या हो गया? भाई अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा ना पार्लियामेंट को कि किस आधार पे आप ये कैलकुलेशंस बना रहे हो। आर द डेटा नॉर्मल, आर द डेटा रियल और दे आर फज्ड, वो तो बताना पड़ेगा। आप एसआईआर कर रहे हो, लोग अगर मारे जा रहे हैं एसआईआर के कारण, ये तो तृणमूल के लोग नहीं है। बीएलओ को कौन अपॉइंट किया है? ममता बनर्जी का सरकार की तृणमूल पार्टी? ना हमारी सरकार किया है ना हमारा पार्टी किया है। बीजेपी का सरकार ने जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिठाया इलेक्शन कमीशन में, वो इलेक्शन कमीशन बीएलओ को अपॉइंट किया है।
वो बीएलओ आत्महत्या करके बोल रहा है मेरा मौत के लिए जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके ऊपर चर्चा अगर मांग रहे हैं तो आप कह रहे हो भाई ड्रामा कर रहे हैं। कौन ड्रामा कर रहा है? पूरा देश देख रहा है। और जब